Okay, ji. Today's topic is formal definition for the Turing machine. Today we will cover how we formally define Turing machine, their transitions, their configurations, their tuples, state changes, initial state logic, final state logic, and the alphabet of tap and sigma. So simple transition function is when you are on any state Q1 and you need to move on the another state Q2, you must need to read something and then write something, and after reading and writing, third thing is that you have to move left or right. So in writing the transition function is modified such as when we are writing the transition function, you are on the Q1 state and input is C. You will read C, output state will be Q2, you will write D, and your movement will be left. So this is a way you write the transition function in the statement form. So it means this is a graphical representation, or we can say transition representation, and this is same transition representation but in the statement form. So when you are defining the formal set of in the form of set, Turing machine in the form of set, so we can say that Turing machine is a set which contains states, set of states. This is a set that contains further sets. So set states and input alphabet sigma, tau is a tape alphabet, and delta is a transition function, q naught an initial state, and this is called the blank symbol. When you go to the Sipser book, Michael Sipser book, third edition, the blank symbol is represented in such a way. This is a blank symbol in the Sipser book, and you might find another symbol in other book. But in some books, the word B is representing the blank symbol. So the people write B, writing the blank symbol. But in this lecture, what notation we are using? The diamond symbol for the blank symbol. And last one is the final states. It's not a state, but we are using word final state. Why we are using word final state? As you know that we have only one state in the Turing machine, because this is a standard Turing machine which contains only one state, final state. But we can say we can design another machine which can contain more than one final state. But you don't cannot go out the final state. There is no transition out of the outgoing from the final state. There is incoming transition in the final state, but there is no outgoing transition in the from the final state. So there are some variations. You know that tau is a set of input alphabet on the tape, and sigma is a set of input alphabet that is read and write on the tape. Sigma is a subset of tau, because the sigma does not contain the blank symbol. This is a diamond symbol which belongs to the tau, but diamond symbol does not belongs to sigma. Therefore, we can say the sigma is a subset of tau, where q naught belongs to q and f belongs to, we have f subset of q. F is a set of states, but set of state is also belongs to the original set of state. This set of state which is only final states, and this set of state is q is set of state which contain all final and non-final, even initial. So we can say it is a bigger set q and is a smaller set, f is a smaller set. Here in Turing machine we can say f is not equal to q. F is not equal to q. Why? The reason is that q will contain at least one state extra than the f. Because if we say there is a Turing machine which contains only two state, one is initial, another is final. Because as we know that there is no outgoing transition from final.
So if you design a Turing machine, there must be at least two states. From this definition, we derive the result that when we are designing a Turing machine, there must be at least two states, because one initial, another is final, because we cannot drive or define any outgoing transition from the final. So if you represent, there is a Q naught initial state, and there is another state which is final state, and we need to define a transition: read A, write B, move left. This is minimum machine we can define it. It should read something, it should write something, it should move left or right. So there is a one transition only going from Q naught to final state QF. But if you want to design a Turing machine with single state, it cannot be possible for the Turing machine. We can design a NFA, DFA, or PDF or single state, but for Turing machine there must be more than one state. Configuration. Another way of writing the statement in the forms that represent the state of or configuration of Turing machine is that here is a tape. You are on the Q1 state. You are pointing to the B on the tape. How you can write this instance in a single statement? So this is called instantaneous description. We also learn about the instantaneous description in the PDA, and there is a way of writing instantaneous description in the Turing machine. You can see here, this is a statement that's showing instantaneous description. How we understand this statement? You see at the tape. At the tape, we did not recognize, we did not understand that we do not note that how many lambdas are blank symbols are there. There may be many blank symbol, infinite blank symbol on the left side or right side. We just need to represent the input alphabet. There is a C, A, B, A. We are pointing to the B. So how we write? We write C, A, and then Q1. And on right side, we write that symbol on which there is a head. So head is on the B. So we write B on the right side of the Q1. So it means Q1 is pointing to B, and after B there is a A. On the left side there is a C and A. Then we write Q1, Q2, Q3, Q4, and then head is pointing to that symbol. That symbol will come on the right side of the state. Q1 is a state, and that is a symbol B. So we write symbol on the right side. So this is called instantaneous description. It means we are saying that on the tape there is a C, A, B, A. There is a state Q1, and Q1 is reading, pointing to the B. When we read B, we write something, we move left or right, then that's called time 2, time 3, time 4. So this is a temporal description. And when we write the set of statement, we combine these set of statement in the form of instantaneous description. How? Let's suppose there is a time 4, we are pointing to the X, and there are symbol X, A, Y, B. So how we write this configuration? In such form: Q2 is pointing to X, and after X there is A, there is Y, there is B. We write all the statement here. At time 5, what we done? We read X, we do something, we write something, and we move somewhere, and the output state, let's suppose there is a Q naught, and we are pointing to A, and there is X on the left side of A, there is Y on the right side of A, and B is the right side of A. So how we write? We will write X, then the name of state which is pointing to A. We write A on the right side because head is on A, that this will be written on the right side, and then remaining symbols will come: Y, B, X, Y, Z, whatever is there. So it means this is time 4, T4, and this is a
time t5. So this statement will come first, this statement will come later. So this is showing the sequence of execution of instruction. You are moving left to right when you are executing the transitions on the Turing machine. At time 6, then you write the configuration of time 6 in this statement form. So this is showing time 6. Here you can see at time t4 you are pointing on x. It means q state is pointing to x. At time 5 you are pointing to a. So q naught is pointing to a. And remaining symbol will come whatever on the left side, whatever on the right side you write as it. At time 6 left side is xx. You are pointing on the y, it means q1 is pointing on the y, with the y will come on the right side and remaining symbol is p. And time 7 your q1 is pointing to the b, and the right side left side there is xy. So xxy and q1 is pointing to b. So this is way how we can write the instantaneous description of a Turing machine. So when we write these instantaneous description in a sequential way, so this statement will come first, then this one, then this one, then this one. We use a special symbol that you might know in from the PDA called description or lexicographical ordering. It means this statement will come first and later. So this symbol is showing that one and there is a relation. Kindly mute your mic so that noise can be removed. So that's called simple a computation. This is a computation. T1, T2, T3, T4. When we need to write a complete description or complete execution of an any arbitrary string using Turing machine, it's a called complete computation. As a part of computation, here you can see you are on Q2 and you have this symbol, you process this symbol in the multiple instantaneous states. These are instantaneous state. From T1 you reach to the T4. You can briefly describe, or you can eliminate, or you can hide these two intermediate transition using the star operator. So it means from Q1 to Q2 to Q1 you are moving multiple instantaneous description. You will write the star operator that showing there are one or more instantaneous description between these two statements. Yes, Farhan, ask the question. Farhan, raise the hand. Farhan Maksi, question. Blank symbol. Yes, we can write blank symbol in between. If we need such a Turing machine where when we need to write a blank symbol, so we can write blank symbol. And you learn in the coming lectures that we replace a symbol with the blank symbol and we replace blank symbol with some other symbol. So this is a way how we are doing the computation. Okay, so moving ahead, here you can learn how we are briefly describing the multiple statement in a single statement. We have hided these two statements and we are showing that from
Q2 to when we have X, A, Y, B, we reach to the statement X, X, Y, Q1, B. And there are more than one statement in between that. That's are shown by a star operator. This star operator shows that there are more than one instantaneous description in between these two statements. So if we write complete detailed description or we write brief description, these are equivalent we are when we are writing a big machine and it contains thousands of statements. So we can, if we want to show how the computation take place, we can summarize the statements in equivalent notation, and that notation is more efficient with respect to when you are presenting or when you are demonstrating to someone. So how we can say what is accepted by a Turing machine? So now we are driving the definition what is accepted by a Turing machine. So initial statement or initial configuration is that you are on Q naught state and there is some input W. So by using the W, what you have to do from W, you need to process this W and you are in final state. From initial state, you are on initial Q naught, you process that W and you reach to the final state. After processing this W, it means W belongs to language L. If you cannot process that W and your last state is not final state, it means W does not belongs to final state. So this is a way through which we can show the what a W is acceptable by Turing machine or not. So when we are writing the definition of language, that is a simple way. We say for any Turing machine, your language of that machine is W, such that from initial state there is input W. You process that W using the multiple set of instantaneous configuration, and you reach to the state where you have processed. On the right side there is x1 some string, there is on the left side there is some string, but your state is final. Your last state is final. It means W is part of language, otherwise W is not part of language. So how we define the Turing machine in the form of language? We say W, there is a W, and that W from leads to from initial to final state. That leads to the machine from initial to final state. That W is accepted by machine. Otherwise, we can say the machine does not accept that particular W. So if the W is acceptable, we say that Turing machine recognize that language. So we use word recognize. If language L is accepted by Turing machine M, then we say the language L is Turing recognizable. Other words in the other books are used same name. They say Turing acceptable or recursively enumerable. These three terms are equivalent. In other book, let's suppose in Sipser book you find other terminology Turing recognizable. In other books, your textbooks are available which are showing Turing acceptable, recursively enumerable. These are three words are equivalent. So we conclude that yes, what is a standard Turing machine? We say the standard Turing machine, number one, is deterministic. Number two, it contains an infinite tape in both directions. And number three, tape is input and output file as well. We are reading from the tape, we are writing to the tape. So tape is playing input and output as well. Yes, Abdullah. Question पूछे? Abdullah.
सर ये जो ब्लैंक सिंबल है इसका बेसिक पर्पस क्या है, और ये बीच में आ सकती है जो हमारे उसमें हमारे स्टेट्स के बीच में आ सकती है ये देखें, टेप में, मतलब एबीसी है बीच में ब्लैंक सिंबल आ सकता है क्या नहीं? आ सकता है, ब्लैंक सिंबल बीच में आ सकता है। और ब्लैंक सिंबल के लिए हमें स्टेटमेंट बनानी होंगी ट्यूरिंग मशीन की। जिस तरह से हम जो लैंग्वेज बना रहे होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक को रीड करेंगे और किसी और सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, और ब्लैंक को रीड करेंगे किसी और सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। इसी की तरह से किसी और सिंबल को रीड करके ब्लैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, ब्लैंक को किसी और सिंबल से कन्वर्ट करना कहलाता है इंसर्शन। और जब हम ब्लैंक किसी और सिंबल को ब्लैंक से कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है डिलीशन। हम किसी भी चीज को डिलीट करते हैं तो क्या करते हैं, लेट्स वो ए, जैसे ए को अगर हम डिलीट करना चाहें तो ए की जगह क्या करते हैं, ब्लैंक राइट करवा देंगे। जैसे और अगर ब्लैंक है और वहां पर ए राइट करवाना चाह रहे हैं तो ये कहलाएगा इंसर्शन। इंसर्ट कर रहे हैं हम कोई चीज, सही। तो दैट्स कॉल्ड इंसर्शन। ये अशरफ, अशरफ ने हाथ खड़ा किया था, पूछे क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोले। सर ये टेप अगर इनफाइनाइट है तो इसका ये मतलब है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो भी इनफाइनाइट होगी, तो फिर हम किस तरह से उसको मतलब स्ट्रिंग की लेंथ करेंगे इनको? इनफाइनाइट हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। देखिए, हम इनपुट पे जब सर लेते हैं, हमारे पास जो होगी वो, नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट नहीं होगी, सॉरी, लैंग्वेज इनफाइनाइट होगी। लैंग्वेज कैन कंटेन इनफाइनाइट स्ट्रिंग, बट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन फाइनाइट। सर तो जो टेप में स्ट्रिंग्स हैं वो एक ही स्ट्रिंग होता है एट द टाइम टेप में, या बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं कि एक रीड करे फिर दूसरा करे? बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल बताऊं, अच्छा, एट अ टाइम। कैलकुलेटर आपको करना है जी 2 जी। + 3 + 5, कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 2, फिर क्या करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, +3 फिर देंगे 3, जब इक्वल जी करेंगे सर। तो इक्वल हो जाता है। तो ये जब इक्वल हो गया तो वो दो स्ट्रिंग मिला के आपने एक और बना दिया, ऐसा ही है। जी जी सर। और फिर +5, जब आप तीसरी स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल स्ट्रिंग जी को कंबाइन करके नई स्ट्रिंग बनाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम कैरेक्टर्स को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को सेंटेंसेस। कंबाइन करके पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ्स को कंबाइन करके स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरीज को कंबाइन करके बुक बनाते हैं, और बुक्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, भाई, कोर्स बनाते हैं सर। बुक्स को कंबाइन करके हम लाइब्रेरी क्या? बनाते हैं। हम कहते हैं ये कलेक्शन बन गई, क्या बनाते हैं सर? लाइब्रेरी बन गई ना बुक्स कंबाइन। कलेक्शन, यस सर। तो इससे जी सिंपल है। जी जी। तो डिटर्मिनिस्टिक यूनिट पे जाएंगे तो यूनिट क्या, करेक्टर। अब करेक्टर की जो कॉम्बिनेशन है वो लॉजिकल होती है। जैसे हमने आपको याद था होगा, मैंने बताया था कि अगर हम APPLE बोलते हैं तो बोलते हैं एप्पल है, लेकिन अगर APPE की बजाय ट्रिपल पी कर दें तो वो एप्पल नहीं कहलाएगा। अल्दो के वो लिखा जा सकता है उन करेक्टर्स के जरिए, लेकिन आपकी जो डिक्शनरी है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इसी तरह से हम जो ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं उसके लिए हम कहेंगे कि वो इनपुट तो है, लेकिन वो इनपुट उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? हेलो सर जी, सर ये पिछली स्लाइड में आपने बताया कि जब फर्स्ट इनिशियल स्टेट से डब्ल्यू प्रोसेस करता है तो फाइनल स्टेट पे जाता है, तो उसके पीछे एक स्ट्रिंग होती है और इसके बाद भी एक स्ट्रिंग होती है। सर फाइनल स्टेट के बाद तो स्ट्रिंग हमारी एंड हो जाती है सर, फिर क्यों स्ट्रिंग हुई सर? मतलब फाइनल स्टेट पर तो सर स्टॉप हो जाता है ना सर, पॉइंट्स के बाद सर। अब तो दोबारा वो कैलकुलेटर वाली एग्जांपल लेता हूँ। जब कैलकुलेटर पे आपने 2 + 3 किया तो वो फाइनल स्टेट पे तो आ गए ना। सर लेकिन फाइनल स्टेट पर तो तब होता है जब वो स्ट्रिंग की सारी एंड हो जाए ना सर, मतलब प्रोसेस हो जाए आपने सारी। करना था 2 + 3, तो वो हो गया, आउटपुट आ गया। अब आपको फर्दर उसमें 5 ऐड करना है, तो ये एक और कंप्यूटेशन कहलाएगी। मतलब अब आपकी वो इनिशियल स्टेट हो गई और +5 होने के बाद वो फाइनल होगी। फिर अगर आपने फर्दर सर लेकिन 10 ये ऐड करना है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सर ये तो अगर टेप इनफाइनाइट हो या इंक्रीजिंग हो, अगर एक ही सर मतलब
फिक्स्ड हो सर, फिर उसके लिए तो बाद में नहीं होगा ना फाइनल स्टेट के बाद? नहीं, फाइनल स्टेट के बाद नहीं, हम हर दफा फिर क्या करेंगे, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे ना। फाइनल स्टेट पे पहुंचने के जी बाद सर, दोबारा कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी तो क्या करते हैं, इनिशियल सर ऐसे। एक्चुअली हमने जो कंप्यूटेशन करनी होती है ना, वो कंप्यूटेशन जब कंप्लीट हो गई तो फाइनल स्टेट पे आ गए। अब दूसरी जब कंप्यूटेशन करनी है दोबारा से इनिशियल स्टेट पे। सही। क्लियर? अब मैं आपको एक जी सर। छोटा सा वो बनाना सिखाऊंगा फंक्शन ट्यूरिंग मशीन से, तो फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ट्यूरिंग मशीन की जो कंप्यूटेशन है वो चलती है। ठीक है, चलें आगे चलें। जी सर। चलें, तो अब हम करेंगे कुछ कंप्यूटेशन फंक्शन विद द ट्यूरिंग मशीन। कंप्यूटेशन फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है डोमेन एंड दूसरा होता है रेंज। डोमेन में आपके पास इनपुट स्ट्रिंग होगी डब्ल्यू, जो कि बिलोंग करेगी डोमेन से, और दूसरी स्ट्रिंग होगी आपके पास, जब एफ ऑफ डब्ल्यू अप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा आउटपुट फंक्शन, और जो आउटपुट फंक्शन है उसका आउटपुट बिलोंग करेगा एस से, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट रीजन या रिजल्ट स्टेट या रेंज। आपका जो फंक्शन होता है एफ ऑफ डब्ल्यू, वो क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो इनपुट डोमेन से आता है और आउटपुट रेंज से आता है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, 2+2 अगर आप करते हैं तो 2+2 दोनों 2 क्या से हो गए, इनपुट डोमेन से। अच्छा जी, जब 2+2 करेंगे 4 आएगा, तो 4 क्या है, आउटपुट। अब ये 4 आउटपुट है, और इस आउटपुट को भी हम देखें कि यहाँ पर भी 4 आउटपुट इनपुट में ही मौजूद होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आउटपुट स्टेट में होगा वो इनपुट में नहीं हो सकता। अब हम ये कर सकते हैं कि 4+2 करेंगे तो आउटपुट आएगा 6। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन है हमारा प्लस का, जो इनपुट डोमेन से कुछ चीज़ें लेता है और प्लस करने के बाद यानी परफॉर्म करने के बाद आउटपुट डोमेन में शो करता है। और वो आउटपुट डोमेन जो है वो हो सकता है कि जो आउटपुट रिजल्ट आए वो रिजल्ट आपका इनपुट में भी हो, ठीक है, और फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता है। इसके सिंपल मिसाल ले लेंगे, ये इटरेटिव चलता रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो रिजल्ट स्पेस डोमेन और रेंज सेम भी हो सकते हैं, डोमेन और रेंज डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम एक कंप्यूटेशन करके देखते हैं छोटी सी, जिससे फंक्शन का काम समझ में आ जाएगा। हम एक फंक्शन बनाते हैं एडिशन का। हम कहते हैं सिंपल एडिशन अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, एक फंक्शन होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसमें एक इनपुट है एक्स और दूसरा इनपुट है वाई, और जो रिजल्ट होगा हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों का समीशन होगा। दैट्स कॉल्ड एडिशन फंक्शन। वो कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दोबारा से जाते हैं स्टोन एजेस में। याद है आपको, स्टोन एजेस में से करवाता हूँ, क्योंकि मैं कराता हूँ कि ट्यूरिंग मशीन जो है ना वो फाउंडेशन है। आप जब बच्चों को नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं तो नर्सरी क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, याद है, या आपने पढ़ा होगा? मेरे पीछे बोलो A B C। नहीं, काउंटिंग, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स ऐसे करवाते हैं, आप कहते हैं उसको देखो जी 1 1, ये कहते हैं 1 2, और फिर आप कहते हैं ये है 1 2 3, इनको जमा करना है। तो बच्चों को कैसे कराते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये किसके बराबर हुआ, उंगलियां गिनवा के सर। 5। उंगलियां गिनवा के या स्टिक लगा के या इस तरह से लाइनें लगा के आप गिनवाते हैं, ऐसा ही है। यस तो सर। ये कोई अजूबा चीज नहीं है, ये सिस्टमेटिक वे है। ये जो ये उंगलियां गिनवाते हैं या आप ऐसे लाइनें लगाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का नाम है यूनरी नंबर सिस्टम। कौन सा कहलाता है, यूनरी नंबर सिस्टम। और दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी, और जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो है डेसिमल, और कंप्यूटर में जो यूज करते हैं वो है हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो ये सारे नंबर सिस्टम है। तो बच्चा जब इनिशियल में क्लास नर्सरी में काउंटिंग सीखता है तो वो यूनरी नंबर सिस्टम से सीखता है। देखिए कैसे, अगर आपके पास नंबर सिस्टम में डेसिमल में है 5, तो बाइनरी में इसको कैसे लिखेंगे 1 0 1। यूनरी में कैसे लिखा जाएगा 1 1 1 1 1 5 टाइम। तो ये आपका यूनरी नंबर सिस्टम के जरिए काउंटिंग करेंगे हम। आप बाइनरी के जरिए भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप काउंटिंग करेंगे, आप मशीन को बना के समझाएंगे कि इस इनपुट पे आपने क्या आउटपुट देना है।
वो आप यूनिरी नंबर सिस्टम का बना सकते हैं, वो बाइनरी का बना सकते हैं, वो डेसिमल का बना सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल का बना सकते हैं। वो जितना बड़ा नंबर सिस्टम होगा उतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, फर्क ये है। तो इनिशियली समझाने के लिए हम पहले यूनिरी का यूज़ करते हैं, फिर बाइनरी का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, बुक में मौजूद है। और डेसिमल और हेक्साडेसिमल जब आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप किसी मशीन का बना सकते हैं। सिर्फ ये होगा, आपको याद होगा कि मैंने क्लास 1 के अंदर लेक्चर के अंदर आपको एक बैंकिंग सिस्टम का ऑटोमेटा बना के दिखाया था, याद है? पे जी रिडीम। सर, वो कॉम्प्लेक्स था सर बहुत ज्यादा। हाँ, वो सिंपल भी बताया था, फिर वो कम्प्लेक्स भी बताया था, और फिर बहुत कम्प्लेक्स भी बताया था। तो इसी तरह से आपने कंसेप्ट सीखना है कि अगर आपको सिंपल बनाना आया तो उसको फिर आप क्या करेंगे, कम्प्लेक्सिटी ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा, बाइनरी पे बन जाएगा, डेसिमल पे बन जाएगा, हेक्साडेसिमल पे बन जाएगा। इस तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम पहले यूनरी से सीखते हैं, ताकि वही नर्सरी वाली क्लास हमारी चल रही है अभी, कि हम स्टार्ट करते हैं कि यूनरी ट्यूरिंग मशीन कैसे बनेगी। So we prefer unary representation easier to manipulate with the Turing machine. हमने यहाँ पे लिया डेफिनेशन, हमने याद पता है कि कंप्यूटेशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन f is a computable if there is a Turing machine m such that आपके पास जब आप इनिशियल स्टेट पे हैं और आपके पास w इनपुट आए, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है f ऑफ w। तो जब आपकी आउटपुट स्टेट होगी वो क्या शो करेगी, एफ ऑफ डब्ल्यू। यानी एफ ऑफ डब्ल्यू क्या है, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर द मशीन फंक्शन। तो आउटपुट स्टेट क्या होगा, मतलब इनपुट में अगर आपके पास है 1 1 प्लस 1 1, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब वो 4 कैसे लिखेंगे, अब हम क्योंकि यूनरी मशीन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 1 प्लस 1 1 हो, तो आपके पास आउटपुट होना चाहिए 1 1 1 1 4 दफा। प्लस का मतलब क्या है, ऐड करना ना। तो वो क्या करेगा, इनको कंकेटिनेट कर देगा और आउटपुट रिजल्ट आपका कंकेटिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, सही है सर। इसकी एग्जांपल करते हैं। अब हम कहते हैं डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बनाएं कि कोई भी फंक्शन आप जेनरिक बनाना चाहें, तो इनिशियल स्टेट में इनपुट w हो, तो सेट ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के जरिए या ट्यूरिंग मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के जरिए आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे और आपका आउटपुट रिजल्ट होगा f ऑफ w। रीड मशीन। अब ले लेते हैं हम इनिशियल डोमेन और कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ट्यूरिंग मशीन का जो फंक्शन बन रहा है वो कहते हैं x प्लस वाई करना है, वो चीज़ कंप्यूटेबल। तो x और y क्या होंगे, डोमेन क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स है। और हम ट्यूरिंग मशीन जब बनाएंगे तो हमारी इनपुट जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो होगी x 0 y। मतलब क्या होगा, जीरो सेपरेटर होगा जो बता रहा होगा ये x है और ये y है। और जो आउटपुट ट्यूरिंग मशीन होगी वो क्या करेगी, x और y को मिला देगी, मतलब उनको कंबाइन करके देगी। अगर हमारे पास इनपुट में 1 1 है और फिर 0 है और फिर 1 1 है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आएगा भाई, 1 1 4 टाइम, 0 को आखिर में ले गए ना। 1 1 0 1 1 था, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 4 टाइम। इसका मतलब ये हुआ, ये है 4, ये था 2, ये था 2, और यहाँ हम 0 यूज कर रहे हैं। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लस तो क्या है, ऑपरेटर है ना, जिसको हम कहते हैं प्लस। का मतलब ये है कि दोनों को ऐड कर ले। अब आप इसको 0 के जरिए रिप्रेजेंट कर दें, या कोई डायमंड सिंबल यूज कर लें, या ट्रायंगल यूज कर लें, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं इस जगह। आप कहते हैं इसका मतलब यही है कि इन दोनों को ऐड कर दें। बेसिक अगर किसी ने ISSB का एग्जाम दिया होगा तो उसने सीखा होगा ऐसे पैटर्न का, के दरमियान में एक सिंबल दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये सिंबल का मीनिंग निकाल के दिखाएं। तो मीनिंग सर देखा किसी ने, सर ये तो 2 सिंबल देते हैं, 2 और डिफरेंट ट्रायंगल, और फिर 2 और आउटपुट दे देते हैं 4। तो बताते हैं बताओ ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो वो प्लस का मतलब होता है वहाँ पे। और वो 2 अगर सर्किल दे दें और फिर 3 दे दें और आउटपुट 6 दे दें, तो आपका मतलब क्या हुआ सर्किल का। अगर आपको सिंबल दें 2 सर्किल या 0 और फिर 3 और आउटपुट हो इसका 6, तो इसका मतलब क्या है, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मल्टी स्क्रीन से आप क्रॉस कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। तो इसी तरह से यहाँ पर हम जो जीरो यूज कर रहे हैं वो क्या है, एज एन इनपुट यूज कर रहे हैं कि जो प्लस के सिंबल को शो कर रहे हैं। अब इसका फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रीन का जो आपने क्रॉस किया है डिलीट भी कर दें क्योंकि आपकी स्क्रीन पे हुआ है ना। अब ये मेरी स्क्रीन से कैसे डिलीट हो, जी थैंक यू। तो अब आप देखिए इनपुट आपके पास है 1 1 1 1 1। अब आप कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी नंबर ऑफ इनपुट 1 जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमिलरली अनदर सीरीज ऑफ 1 जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी होगी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पॉइंट कर रही होगी फर्स्ट वन को, और जीरो आपके पास डेलीमीटर है या सेपरेटर है। आप जीरो यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह एक्स यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह वाई यूज कर सकते हैं, एनी सिंबल यू वांट टू यूज इट। तो हमने यहाँ पे जीरो यूज किया। आउटपुट क्या होगा, एक्स प्लस वाई, वो जो जीरो था दरमियान में उसको ये क्या ले जाएगा, लास्ट में ले जाएगा, और जो वन वन की सीक्वेंस है उसको कंबाइन कर देगा। तो फाइनल आपकी स्टेट दोबारा से वन पे पॉइंट कर रही होगी। आपने ऐसी मशीन बनानी है कि फाइनल स्टेट आपकी दोबारा से वन पे पॉइंट कर रही हो और जीरो को लास्ट में ले जाए। इसके सिंपल एग्जांपल देखें, वो बन गए जो मैंने आपको कहा था 2 + 3 + 5 करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे ये, पहले 2 + 3 होगा, जो रिजल्ट आएगा 5, उस 5 के अंदर फिर +5 करेंगे, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपका पॉइंटर जो है वो 2 की पहली सिंबल पे पॉइंट कर रहा है, Q0 जब इनिशियल स्टेट है, आप 2 को लेंगे, प्लस को ले जाएंगे लास्ट में, और फिर 3 को ऐड कर देंगे। तो आपके पास जब 5 आएगा तो अगेन 5 के जो पहला इनिशियल Q1 है उसको Q0 पॉइंट कर रहा होगा, और फिर आप इसको x लेंगे और दूसरे वाले 5 को y लेंगे और देन प्रोसेस करेंगे, और जो 10 रिजल्ट आएगा अगेन उस 10 की फर्स्ट सिंबल के ऊपर आपका Q0 पॉइंट कर रहा होगा। इस तरह से आपने मशीन्स को एग्जीक्यूट करना। अब एग्जांपल करते हैं इसकी, जैसे समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये मशीन आ गई, ट्यूरिंग मशीन। इस ट्यूरिंग मशीन को समझें, गौर से देखें पहले। जी, तो इस ट्यूरिंग मशीन को देखें, ये है सिंपल आपकी f(x) x + y की ट्यूरिंग मशीन। अब इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास आएगा इनपुट 1 क्योंकि Q0 पॉइंट कर रहा होगा 1 को। तो आप 1 को रीड करेंगे, राइट कर देंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, और मूव करते जाएंगे राइट साइड में। जब आप मूव करते जाएंगे राइट साइड में तब तक जब तक 1 आते रहेंगे। जैसे ही 0 आएगा तो आपने उस 0 को क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, और मूव करेंगे फिर राइट, फिर आपके पास अगेन 1 की सीक्वेंस आ जाएगी। रीड करें, राइट करें, रीड करें, राइट करें। अब जैसे ही आपके पास डायमंड आ गया, इसका मतलब दूसरा इनपुट, यानी ये x को शो कर रहा है और ये y को शो कर रहा है, और 0 किसको कर रहा है, प्लस को कर रहा है। तो आपने क्या किया, x को ऐसे ही रहने दिया, स्किप किया। 0 आया तो उसको 1 कन्वर्ट कर दिया, और y को ऐसे ही रहने दिया। और जैसे ही डायमंड आया, अब आप समझ गए कि डायमंड का मतलब है इनपुट खत्म हो गया, तो डायमंड को आपने डायमंड ही रहने देना है, लेफ्ट पे आना है, और लेफ्ट पे आने के बाद एक जो आपने 0 को 1 कन्वर्ट किया था उस 1 को 0 कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इक्वल सिंबल हो जाए। क्योंकि आपने यहाँ पे देखे एक 0 को क्या बना दिया था, 1 बना दिया था, इसका मतलब एक 1 एक्स्ट्रा हो गया। अब लास्ट में आपने क्या करना है, एक 1 को 0 बनाना है ताकि नंबर ऑफ वंस इक्वल जो है ना उनके अंदर मॉडिफिकेशन ना हो और आपका रिजल्ट सही है। और लेफ्ट पे मूव करना है, और लेफ्ट पे मूव करने के बाद अब आपके पास क्योंकि 1 1 1 1 है तो आपने इनिशियल स्टेट पे आना है, यानी दोबारा से आपने पहले 1 को पॉइंट करना है। तो आप रीड 1 राइट 1 रीड 1 राइट 1 होते लेफ्ट मूव करते जाएंगे, और लेफ्ट मूव करते करते आप पहले वाले 1 पे आ जाएंगे, फर्स्ट 1 पे। और जब फर्स्ट 1 पे आएंगे, कैसे आएंगे, जैसे ही आप फर्स्ट 1 पे आएंगे और उसके बाद लेफ्ट मूव करेंगे तो आप आ जाएंगे डायमंड पे। और जैसे डायमंड को रीड करेंगे तो रीड डायमंड, राइट डायमंड, मूव राइट करेंगे तो दोबारा से फर्स्ट 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि डायमंड को रीड करके आपने स्किप किया, दोबारा से फर्स्ट 1 पे आ गए, और ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। इसकी सिमुलेशन कर देता हूं मैं आपको।
देखिए आपके पास x है 1 1 और y है 1 1, आपने पॉइंट किया 1 1 पे, आपका ये टाइम 0 पे होगा। आप 1 1 पे पॉइंट करेंगे, आप करेंगे रीड 1 राइट 1 मूव राइट, रीड 1 राइट 1 मूव राइट। अब जैसे ही 0 आएगा आप कहेंगे रीड 0 राइट 1 मूव राइट, फिर 1 आ जाएगा, रीड 1 राइट 1 मूव राइट, रीड 1 राइट 1 मूव राइट, रीड डायमंड राइट डायमंड मूव लेफ्ट। अब लेफ्ट पे आने के बाद आपने इस वाले 1 को 0 कर देना, क्योंकि आपने इस 1 को क्या किया था, 0 को क्या किया था, 1 किया था। तो अब इसको आपने 1 कर दिया था, इसको 0 कर देना। तो देखें 1 1 1 1, ये 4 1 हो जाएंगे कंसेक्टिव या सीक्वेंस में। अब यहाँ आने के बाद जब आपने डायमंड को रीड किया, 1 को 0 कन्वर्ट करने के बाद आपने ये 1 स्किप करते हुए पहली स्टेट पे आना है। तो आपने करना रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट, 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 और फिर डायमंड आ गया लेफ्ट साइड वाला डायमंड। तो आप करेंगे रीड डायमंड राइट डायमंड मूव राइट, और ये आपकी फाइनल स्टेट में चला जाएगा और आपका कर्सर दोबारा से पहले 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो देखिए फाइनल स्टेट आपकी ये बन जाएगी और आपका 0 आखिर में आ गया। आप दोबारा से फर्स्ट इनिशियल पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं। सिमुलेशन मैं करके दिखा देता हूँ अगेन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए आपकी पहली स्टेट है, पॉइंट कर रहे हैं 0 पे, ये आपका 0 पे 1 पे पॉइंट हो रहा है। इनिशियल स्टेट है Q0, ये इनिशियल स्टेट होगी Q0। आप कह रहे हैं रीड 1 राइट 1 मूव राइट, तो इस पे पॉइंट करने लग जाएंगे। फिर रीड 1 राइट 1 मूव राइट, अब आप 0 पे आ गए। अब 0 वाली ट्रांजिशन चलेगी, रीड 0 राइट 1 मूव राइट। तो आपने 0 को 1 में कन्वर्ट किया और मूव करके राइट। अब देखिए 1 की तादाद ऊपर अगर गौर से देखें तो 5 हो गई, 1 की तादाद कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आपने क्या करना है, इस 1 को स्किप कर देना है, रीड 1 राइट 1 मूव राइट, रीड 1 राइट 1 मूव राइट। अब आ गया डायमंड, अब डायमंड वाली ट्रांजिशन चलेगी, ये वाली रीड डायमंड राइट डायमंड करने के बाद आपने लेफ्ट आना है पहले 1 के बाद, और उस 1 को आपने 0 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप एक 0 को 1 बना चुके थे, वो एक्स्ट्रा हो गया था। तो अब आपने आखिर वाले 1 को 0 बनाना है। तो आपने क्या किया, रीड 1 राइट 0 मूव लेफ्ट। देखिए ये वाला 1 जो है आखिरी वाला, इसको आपने क्या करना है, 0 बनाना है और मूव लेफ्ट करना है। और फिर 1 जो है जितने भी आएंगे उनको स्किप कर जाना है और लेफ्ट पे जाते जाना है। तो रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट, रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट, रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट, रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट। ये आपके टाइम भी साथ साथ बता रहा हूँ मैं, टाइम चल रहा है एग्जीक्यूशन में कि कितने स्टेप्स चल रहे हैं। अब 10th स्टेप में जब रीड 1 राइट 1 मूव लेफ्ट करेगा, अगेन डायमंड आ गया 11th स्टेप में। अब आपने डायमंड पे कर्सर को नहीं छोड़ना है, आपने ये देख लिया कि मैं बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट आ गया हूँ, तो जैसे ही लेफ्ट मोस्ट आ गया आप डायमंड पे पॉइंट कर रहे हैं। तो डायमंड वाली ट्रांजिशन आपने बनाई है इस तरह से कि रीड डायमंड राइट डायमंड मूव राइट, और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। और अब आपके पास जो है वो इनपुट क्या हो गया, पहले वाला इनपुट ये हो गया 4। अब देखें ये 0 है, और अगर डायमंड की जगह यहाँ पर होता 1 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब ये पहला इनपुट हो जाएगा x और ये दूसरा इनपुट हो जाएगा y, और फिर दोबारा आप समीशन चलाएंगे। तो इस तरह से आप एडिशन कर होते हैं, इटरेटिव एडिशन। कैलकुलेटर पे भी इसी तरह से कर होते हैं, कंप्यूटर में भी ऐसे कर होते हैं, फिबोनाची सीरीज को भी ऐसे ऐड करेंगे। तो ये आपका समीशन प्रोसेस सीक्वेंस में चलता रहेगा। फिर दोबारा आप Q0 से स्टेट को लेंगे, क्योंकि अब आपका ये वाला x है और ये वाला y होगा, और दरम्यान में वही 0 सेपरेटर है। इस 0 को आपने लास्ट 1 कर देना है, लास्ट वाले 1 को 0 करना है, और इस तरह से ये आपका फिर x बन जाएगा, और इसके बाद जो टेप होगी y बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? जी, Huawei Y7 Prime 2018 रेज हैंड। नाम तो रख लें यार अपना कोई। सर जी फिदा बात कर रहा हूँ। जी फिदा हिम्मत। हाँ, जो भी है नाम रख लें उसका, ताकि बताने में आसानी हो। बोले सर जो मशीन है जो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डायमंड भी आ रहा है और जीरोस वगैरह भी आ रहे हैं, ये पूरी समझ नहीं आ रहा मतलब इसमें हो क्या रहा है। ये देखें, अब हम जो है ना
वो बना रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन्स बना रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। देखें ट्यूरिंग मशीन क्या है, तो सिंपल वो समझ आ जी मोस्ट जी जी पावरफुल मशीन है। जी जी बताइए। जितना भी कंप्यूटर में फंक्शनलिटी हो सकती है ना, इसकी फाउंडेशन ट्यूरिंग मशीन है। मतलब लॉजिकली आप जी पहले सोचते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, उसकी सीक्वेंस बनाते हैं और उसको फिर मशीन को बता देते हैं कि वो ऐसे होगा डिटरमिनिस्टिक में। अब ये जो 1 1 बनाया है हमने, ये है आपका इनपुट यूनरी नंबर, और जीरो जो है वो सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ट्यूरिंग मशीन के डेफिनेशन में दिया ना हमने शुरू में, तो ये फंक्शन बनाया हमने, तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे कहा कि ये जो मशीन है इसमें ये इनपुट है x जो कि 1 1 की फॉर्म में है, ये इनपुट है y जो कि 1 1 की फॉर्म में है, और जीरो क्या है, सेपरेटर है। हमारी स्टार्ट स्टेट ये होगी, तो फाइनल स्टेट ये होगी कि जो 1 1 को कंबाइन कर देगा और जीरो को आखिर में ले जाएगा। ये हमारी मशीन की डेफिनेशन हमने बनाई है, क्योंकि हम इसका मशीन कौन सी है, ये हमारी एडर, एडिशन सिखा रहे हैं। ठीक है, डीएलडी में पढ़ा होगा आपने एडर क्या होता है, एडर सब्ट्रैक्ट पढ़े हैं ना, तो ये एक सिंपल हमने एडर एडर पढ़ा, सबट्रैक्टर नहीं पढ़ा। पढ़ा है ना, चले एडर पढ़ा है। जी सर। तो डीएलडी में एडर बनाते हैं, वो ऐसे ऐड कर रहा होता है ना 1 1 को लॉजिकली, बिटवाइज एडिंग। यस सर पढ़ा है। बाइनरी पे चल रहा होता है, ये यूनरी पे है। यस सर। तो ये बाइनरी की यूनरी की मशीन बनाई है हमने सिंपल। अच्छा ठीक सर। ठीक है, ठीक है सर। तो यूनरी की मशीन बनाई है हमने। यहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले इनपुट को जीरो से पहले, और दूसरा 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे इनपुट को। एक्स और वाई प्लस करेंगे तो एक्स प्लस वाई का आउटपुट आ जाएगा। ये हमने ट्यूरिंग मशीन सोच के बनाई है इस तरह से कि हम एक्स प्लस वाई को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे जीरो मैंने सेपरेटर लिया है, अगर मैं जीरो की बजाय यहाँ पर सेपरेटर ले लेता, लेट्स सपोज 5, अब 5 सिंबल है, जिस तरह 1 सिंबल है, 0 सिंबल है, 5 क्या है, सिंबल है। तो मैं कहता ये 5 क्या सेपरेटर है। अब 5 सेपरेटर ये क्या करता है, मैं आखिर में जब 1 होता है तो इसको अगेन 5 में रिप्लेस कर देता। ये कोई भी सिंबल हो सकती है, आप इसको प्लस भी ले सकते हैं, प्लस सेपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन सेपरेटर है, कोई भी सिंबल ले लें आप। तो यहाँ पे हमने इसमें जीरो लिया है, उसकी लॉजिक ये है कि हम इसको 0 1 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने मशीन ये बनाई थी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि क्या करेंगे, हम यूनिट नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे जिसमें 1 1 1 है, और उसमें 1 1 के अलावा जो भी है चीज़ वो सिंबल है, जो कि ऑपरेटर होगी या सेपरेटर होगी, क्योंकि सिर्फ जो नंबर है वो क्या है, 1 है, सिर्फ 1 यूज़ होगा। उसके मुताबिक हमने ये मशीन बनाई है, जो कि एक सिंपल मशीन है जी। Anything else? एक और मशीन बना के देता हूँ मैं, फिर उसके बाद स्टॉप करते हैं। कोई और सवाल हो? दानियाल जी पूछें। सर वो म्यूटेड है। अनम्यूट कर लेना, मेरी तरफ से तो सारे अनम्यूटेड नहीं हैं। सर, वो आपकी तरफ से कुछ म्यूट होते हैं, फिर म्यूट रहते हैं सर। चले आप मैंने कर खुद दिया, मैन्युअली अनम्यूट करेंगे फिर हो अनम्यूट कर जाएगा। दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया, बोले हैं सर दानियाल। ये लास्ट में एडिशन तो शो हो नहीं रहा, मतलब जिस तरह सिर्फ 1 1 नहीं आ रहे हैं, तो ये एडिशन आउटपुट कैसे इसका हम शो करेंगे? वहाँ लास्ट में क्या आ गया आउटपुट हमारे पास, 1 1 1 1, इसका मतलब क्या हुआ, 4। इनपुट क्या दिया था हमने, 2, दूसरा इनपुट क्या था, 2, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है ना बेटा दानियाल। 1 1 और उसको हम 1 1 में ऐड करेंगे तो 1 1 यू 4 टाइम लिख देंगे ना, इस तरह सर से। क्या दयाल कह रहा है आपने म्यूट कर दिया सर? नहीं यार, अभी तो बोला है वो। सर वो म्यूट हो गया ना सर, हो गया उसको मैसेज भी किया है। असल में पता है क्या है, मैं आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, हेलो पार्टिसिपेंट, अब देखें, दानियाल ने फिर खुद म्यूट किया है, मैंने तो अनम्यूट किया। यस सर समझ आ गया सर। वो मैं समझ रहा था कि आखिर में
आउटपुट इसका 4 आना चाहिए, मतलब इस तरह से हम काउंट करें ना कि 4 पता चले आखिर में आउटपुट। 4 यही हो ना, कंसेक्टिव 4 टाइम 1 होगा तो ये 4 हो गया। ठीक क्योंकि है सर। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 तो होता ही नहीं ना, जैसे हम कहते हैं 10 10 10, तो यूनरी नंबर सिस्टम में 1 1 ही होते हैं ठीक है और सर। कोई नंबर नहीं होता। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम एक और मशीन बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं सोचूंगा कि आप इस तरह की बहुत सारी मशीनें बनाएं, प्रैक्टिस करें, अलग अलग बनाएं। एग्जाम में आपको मैं अलग अलग एग्जाम दूंगा। वर्क फ्रॉम होम है, किताबें खोली होंगी आपने दाएं बाएं, तो आपको मशीनें ऐसी देंगे कि आप किताबें खोल के बना सकें। ठीक है, तो अनदर फंक्शन हमारे पास एग्जांपल है f of x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम दूंगा ना, तो ओपन बुक एग्जाम ये होगा कि आप किताबें खोल के बनाएं, तो मशीनें ऐसी इंटरेस्टिंग होगी कि किताबें खोल के बनेंगी आपसे। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लॉजिक बता देता हूँ आपको। सिंपल लॉजिक क्या है कि मैं आप मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 से करूँ या 5 से करूँ, या मैं कह दूँ x को y से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों पे लॉजिक सेम होगी। अब फिलहाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं 2 से कैसे करेंगे। तो इनपुट हमारे पास क्या हुआ, x इंटीजर में है, और x इंटीजर जो है वो यूनरी नंबर सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं, तो यूनरी इनपुट ले रहे हैं हम। आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट होगा 2 टाइम x, ऐसे ही है ना। 2x का मतलब क्या होगा, 2 दफा x। अगर इसी तरह से 3x बनाएंगे तो क्या होगा, 3 टाइम x। 4x बनाएंगे तो क्या होगा, 4 टाइम x। और आपको पता है आपका बेसिक जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है उसके अंदर जो सीपीयू के अंदर एडिशन होती है वो ऐसे ही होती है, वो जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना वो सक्सेसिव एडिशन कर रहा होता है। अब क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर के अंदर मल्टीप्लायर अलग से आ गए हैं, लेकिन जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो सिंपल यही था। जी लेट्स गो एट, अब हम बनाते हैं इसका x 2x। तो क्या करना होगा उसका, सिंपल कोई आइडिया बताए, सिंपल सा कंसेप्ट है। एनीबॉडी, अब्दुल क्या नाम है इसका, ये मौलवी साहब, ये बोलते ही नहीं है, बहुत दिन हो गए यार, आवाज ही सुनी। अब्दुल हमीद, क्या नाम है? जी सर। अब्दुल हमीद, अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला, अब्दुल हक सर। अब्दुल हक या अब्दुल्ला? हाँ अब्दुल हक। जी सर। अब्दुल हक बताएं यार, आइडिया बताएं कैसे बनेगी ये मशीन 2x वाली, कोई लॉजिकल आइडिया। सर कुछ खास समझ नहीं आ रहा सर इसको। लेकिन सिंपल मैंने बताया ना कि आपके पास इनपुट होगा 2x, x इनपुट है, जी सर। आपने फंक्शन कंप्यूट करने 2x, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट लेके आएंगे xx। 2x हो गया ना, 2 टाइम x। अगर इनपुट होगा 1 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, 4 हो गया। अगर इनपुट होगा 3 तो आउटपुट क्या हो जाएगा, x था 3 टाइम 1, दूसरा x क्या होगा 3 टाइम 1, तो आउटपुट 6 हो गया। इज इट इट? सही हो गया। होगा कैसे, मशीन कैसे बनाएंगे? पार्टिसिपेंट पूछ लें, जिसने भी रेज हैंड किया सवाल। सर जैसे पहले बनाई थी वो एडिशन वाली वैसे ही बनाएंगे सर। हाँ, तो एडिशन वाली में तो ये किया था ना हमने कि 0 को आखिर में ले गए थे, इसमें क्या करेंगे? सर इसमें उसको 0 आएगा जो ही इनपुट नहीं आई है ना। उसी को दोबारा। यस सर, जो इनपुट आई है उसी को हम दोबारा से कर लेंगे। इनपुट को डबल लेकिन करेंगे, और 2x है यस तो सर, इनको डबल यस सर। से तो इनको ट्रिपल करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल देख लेंगे, मशीन आ गई। इनिशियल स्टेट आपके पास है ये 1 1 1 1 1। आउटपुट क्या है, आपने जो 1 1 1 जितने भी होंगे उसको डबल करना है, तो 2x क्या होगा, उन 1 1 को आपने डबल करना है। तो डबल करने की लॉजिक आपको सिखाता हूँ, सिंपल सिंपल लॉजिक है, इसको हम सूडो कोड भी कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है विथ एवरी वन विथ डॉलर।
और फिर रिपीट करना है जब तक कि तमाम वन जो है वो डॉलर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये फाइंड राइट मोस्ट डॉलर आप कन्वर्ट करते जाएंगे हर इनपुट को डॉलर में, और फिर देखेंगे जब सारे डॉलर में कन्वर्ट हो गए तो अब आप जाएंगे राइट मोस्ट जो डॉलर होगा पहला डॉलर, उस डॉलर को रिप्लेस करेंगे 1 से, और लेफ्ट पे जाएंगे सॉरी राइट पे जाएंगे और राइट पे जाके इंसर्ट कर देंगे 1। इंसर्ट 1 मैंने सिखाया था, अभी सवाल पूछा था अब्दुल्ला ने। इंसर्ट 1 का मतलब क्या है? डायमंड की जगह से लग डायमंड को 1 में डायमंड कन्वर्ट की कर जगह देंगे। में फिर हम लेफ्ट पे आएंगे, पहला डॉलर जो मिलेगा उसको 1 करेंगे, फिर राइट पे जाएंगे, पहला डायमंड जो मिलेगा उसको 1 कर देंगे, फिर लेफ्ट पे आएंगे, पहला डॉलर जो मिलेगा 1 कर देंगे, फिर राइट पे जाएंगे, पहला डायमंड जो मिलेगा उसको 1 कर देंगे। तो इस तरह से जितने डॉलर होंगे उतने ही 1 बन जाएंगे। तो अगर एक्स जो है वो 1 1 था तो आपने 2 डायमंड को 1 1 बना दिया। अगर इस तरह से एक्स 3 था तो आप 3 और ऐड कर देंगे, 4 था तो 4 ऐड कर देंगे। इस तरह से चलते रहेंगे जब तक कि आपके डॉलर खत्म ना हो जाए। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये आपकी आ गई आपके सामने, आप इसको चला के देख लें, सिमुलेट करके देख लें। आपने करना क्या है, इनिशियल स्टेट में हो, आपके पास जैसे 1 आएगा आपने कन्वर्ट करना है उसको डॉलर में और मूव करना है राइट साइड में। इसका मतलब ये सारे 1 हैं उनको कन्वर्ट कर देगा डॉलर में। जब 1 खत्म हो जाएंगे तो क्या आएगा, डायमंड आएगा। अब डायमंड को डायमंड ही रहने देना है, लेफ्ट साइड में आना है और आपने ढूंढना है पहला डॉलर। उस पहले डॉलर को आपने 1 बनाना है और फिर राइट में जाना है, और राइट में जाने के बाद जैसे पहला डायमंड आएगा उसको 1 कर दें। अब आप लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में अगर आपको 1 मिलेगा तो उसको 1 ही रहने देंगे, डॉलर मिलेगा तो 1 कर देंगे, ठीक है। और फिर राइट में आएंगे, 1 मिलेगा तो 1 ही रहने देंगे, लेकिन अगर डायमंड मिलेगा तो 1 कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आपके पास कोई Q नॉट स्टेट में कोई ट्रांजिशन ना मिले आपको डॉलर की या 1 की। जब डॉलर और 1 की नहीं मिलेगी तो किसकी मिलेगी, डायमंड पे आप फाइनल स्टेट। ओके, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जिसको हमने यहाँ पे सीखा, और एक इसकी सिमुलेशन कर लेते हैं, देन वी स्टॉप इट। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर रिजल्ट्स के साथ आइए। हमारे पास स्टार्ट स्टेट में 1 1 Q नॉट। स्क्रीन नहीं आ रही सर जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, शेयर नहीं हुई स्क्रीन। और की वजह से गायब हो गई ना। चलें करते हैं। डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, शेयर स्क्रीन जी। ओके, अब इसको देखें आप मशीन कैसे काम करती है। ओके, सो देखिए इनपुट था हमारे पास, और इस इनपुट को हमने क्या किया, 1 था, रीड 1 राइट 1 मूव राइट करेंगे, रीड उसको डॉलर बना देंगे। मैं यहाँ कर्सर ले लेता हूँ। तो हमने क्या करना है, इसको हमने बना देना है डॉलर, इसको बना देना है डॉलर। ये हम करेंगे रीड 1 राइट डॉलर मूव राइट। जब राइट पे आए तो हमें मिला डायमंड। अब ये वाला जब डायमंड मिला तो ये ट्रांजिशन चलेगी। अब हम फिर लेफ्ट पे जाएंगे, ये लेफ्ट सिंबल क्या करिए, लेफ्ट पे जाओ। लेफ्ट पे जाएगा तो पहला डॉलर जब मिलेगा, ये वाला डॉलर, उसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो इस डॉलर को हटाएंगे, हम इसको 1 बना देंगे दोबारा से। अब 1 बनाने के बाद अब फिर आएंगे इस पे राइट पे। तो राइट पे क्या है, राइट पे डायमंड है। अब इस डायमंड को आपने 1 बना देना है। तो इस डायमंड को आपने कन्वर्ट कर दिया 1 में, इसको हटाया और इसको 1 कन्वर्ट कर दिया। अगेन आप Q1 पे आ गए। Q1 पे आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा क्योंकि आप 1 पे हैं, पॉइंटर यहाँ पे 1। इसको स्किप करके लेफ्ट पे जाएंगे, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर स्किप करके लेफ्ट पे जाएंगे, फिर डॉलर आ जाएगा। ये वाला डॉलर, एक डॉलर रहता था, ये डॉलर आ जाएगा।
इस डॉलर को आपने कन्वर्ट करना है और 1 बनाना है, तो यानी कि ये डॉलर भी 1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, राइट पे मूव करना है, क्योंकि ये राइट कर रहा है। 1 बनाने के बाद राइट की ट्रांजिशन है, मूव राइट। तो आपने राइट पे आना है, राइट पे 1 है, 1 को स्किप करेंगे, मूव राइट करेंगे, रीड राइट 1, राइट 1, मूव राइट, फिर स्किप करेंगे 1, रीड 1, राइट 1, मूव राइट, फिर स्किप करेंगे, रीड 1, राइट 1, मूव राइट, और फाइनली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ भी एक डायमंड है। जब आपके पास डायमंड आएगा तो रीड डायमंड, राइट 1, मूव लेफ्ट करेंगे। इस डायमंड को आपने 1 कन्वर्ट कर दिया, अब लेफ्ट पे जाएंगे, 1 आ गया स्किप कर देंगे, 1 आ गया स्किप कर देंगे, 1 आ गया स्किप कर देंगे। अगेन जब डायमंड आएगा ये वाला, तो आपने इसको डायमंड रहने देना है और मूव करेंगे राइट, और पहले 1 को पॉइंट कर रहे होंगे इस वाले को, तो आपके पास देखें 1 1 1 1 हो गया, यानी आउटपुट आ गया 4 टाइम 1। इनपुट था 2 टाइम 1 और आउटपुट आ गया 4 टाइम 1, मतलब आपने उसको डबल कर दिया ट्वाइस, और आपकी फाइनल स्टेट, आउटपुट स्टेट Q3 हो गई। तो इस तरह से आपकी कंप्यूटेशन चलेगी। क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, ये 2 मशीन हो गई, एक हमने बना ली x प्लस वाई की, दूसरी बना ली x 2x की। अच्छा 2x की बनेगी तो 3x की बना लेंगे। कोशिश करेंगे सर। अब आपने ये करना है फिर वो यूं ही होगा ना CR, कि एक दफा डॉलर्स में चेंज कर दिया, उसके बाद 2x के लिए जैसे एक्स। हम वन लगाते हैं, फिर उन वन को फिर से डॉलर के किसी और सिंबल में चेंज कर दिया, फिर उनके अकॉर्डिंगली हम आगे 3 सर लगाते तो एक्स में जितने मर्जी 1 हो सकते हैं, जितनी मर्जी हो। यानी कि उसको हम फिर 2x करें या 3x करें, फिर उसको सिर्फ मशीन में चेंज आएगा, एक्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ, x में कुछ भी हो सकता है, इनपुट तो कुछ भी हो सकता है ना, मशीन आप चेंज करते हैं, प्रोग्राम में इनपुट तो कुछ भी हो सकता है। अब जब आप C++ में, जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, कहते हैं टेक इनपुट, तो इनपुट तो कुछ भी दे सकता है यूजर। अब आप इनपुट का करेंगे क्या, वो आपका आउटपुट प्रोग्राम बताता है कि उस आउटपुट से कैसे खेलेंगे आप इनपुट से। ठीक है सर अभी अभी ये सिर्फ आपने सिर्फ यूनरी की एग्जांपल्स करवाई है ना, हाँ, यूनरी की। बाकी बाइनरी और उसका तो नहीं बताया। इसमें सिर्फ 1 ही यूज होगा अभी सिर्फ। आप इस हफ्ते क्या करें, आज की क्लास से आज आप यूनरी की प्रैक्टिस करें, कल मैं आपको बाइनरी की एग्जांपल दूंगा और फिर बाइनरी की होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी आपके पास 24 घंटे यूनरी की प्रैक्टिस करने के लिए हैं, और इनको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन के अंदर लिखने की जरूरत है। फिर यूनरी की बना दूँ, दिखा दूंगा मैं आपको 1-2 मशीनें, और उसके बाद आप किसी की बना लें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। एक्चुअली ये है कि कॉन्सेप्ट समझें कि आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक हो गया? हैं। यस सर। एक और आइडिया देता हूँ अभी, लास्ट वन। आप इफ एल्स भी बना सकते हैं ट्यूरिंग मशीन के जरिए, फंक्शन कंप्यूटेबल। इफ एक्स, इफ एफ, वो बनाएंगे ना इफ एल्स, कैसे बनेगी? इफ एल्स क्या होता है लॉजिकली, आप कहते हैं कि आपके पास इनपुट है एफ ऑफ एक्स और वाई, अगर x इज ग्रेटर देन y तो टेप के ऊपर लिखवा दे 1 1 1 1 1, और इफ x इज लेस देन y और इक्वल टू y तो टेप के ऊपर क्या लिखवा दे? 0 0। मतलब ये हुआ कि रेज कर दे। तो ये सिंपल इफ एल्स बन गया। जी सर। क्या ये कंप्यूट कर लेंगे आप? x ग्रेटर देन y कैसे कंप्यूट करेंगे? सर अगर वहां पर 1 होगा, 0 से 1 पे जाएंगे तो ग्रेटर होगा, इस तरह से ही होगा सर। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ANBN की मशीन बनाई थी ना हमने, ANBN मशीन में क्या कर रहे थे हम, दोनों इक्वल हैं तो एक्सेप्ट करे वरना रिजेक्ट करे। अब यूं समझ लें वो जो रिजेक्ट करे वाली स्टेट है ना, दोनों यहाँ आ गई। x अगर y से बड़ा है तो रिजेक्ट करे, और y x से बड़ा है तो रिजेक्ट करे। तो वहां पे हम रिजेक्ट करवा रहे थे ANBN की मशीन में, वो सेम ANBN की मशीन यूज होगी यहाँ पर, और जिसको रिजेक्ट करवा रहे थे हम x बड़ा होने पे, वहां पे 1 राइट करवा देंगे। जहाँ रिजेक्ट करवा रहे थे y बड़ा होने पे या y बराबर होने पे, वहां पे हम क्या करेंगे? 0 राइट करवा देंगे। वही मशीन यूज होगी। कैसे सर, समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। ANBN वाली मशीन थी ना, ये दोबारा ले जाता हूँ। ANBN की मशीन थी, हमने ये डिस्कस की थी कल की क्लास में। ये देखिए,
यहाँ ANBN मशीन में क्या कर रहे थे हम x को इनपुट जो था हमारा a उसको हम y बना रहे थे और b को x को a को y x बना रहे थे और b को y कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। वाई बना रहे थे। हम क्या कर रहे थे, जी मैच सर। अंटिल देयर इज नो a और b, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या करवा दे, वो जीरो राइट करवा दे उस स्टेप में जो हमने फंक्शन अभी डिस्कस कर रहे थे कि x इज लेस देन आर इक्वल टू y, तो लेस देन आर इक्वल टू y हो तो वहां पे जीरो राइट करवा दे और ग्रेटर हो तो x राइट करवा दे। तो इस मशीन में जब हम कंपेयर कर रहे होंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3a और 2b हैं, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन y। जी सर। और अगर यहाँ पे 2a 2b या 2a 3b या 2a 4b 5b 6b है, तो इसका मतलब हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू y। जी सर, ये भी बात समझ आ गई। ठीक है, तो यही मशीन को आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो आपकी आखिरी वाली मशीन बन जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन और y। ये इसकी जो स्टेट है ना, ये फाइनल स्टेट x की लेस देन और इक्वल टू y पे सेम रहेगी, लेकिन x ग्रेटर देन पे आपने नॉन फाइनल जहाँ पे x ज़्यादा और y कम हो उसको फाइनल बना देना है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होगा आपको, आप नहीं पूछेंगे लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि अब बाद में कंफ्यूज होंगे कि जब अगर उसको फाइनल बना देंगे तो उससे तो आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने ये कहा था कि आप फाइनल स्टेट से आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं बनाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा फाइनल बना सकते हैं। ठीक है, सही है सर। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट बना सकते, क्योंकि फाइनल क्या था, एफ कैपिटल सेट ऑफ स्टेट। ठीक हो गया, चले अजान हो रही है, आप सोच लें, कोई सवाल है अजान के बाद पूछ लेता हूँ ना, उसके बाद ब्रेक करते हैं। ये सूडो कोड भी आ गया, इसका नजर आ रहा होगा आपको। आपने मैच करना है 1 फ्रॉम x विथ 1 फ्रॉम y until x or y is matched. If 1 from x is not matched with y, erase the tape, write 1, क्योंकि हमने कहा था x ग्रेटर देन y। और else क्या करेंगे, else में आप टेप को क्या करेंगे, जीरो राइट करवा देंगे, वो इक्वल हो या लेस देन हो। तो ये सिंपल सूडो कोड होगा, पहले सूडो कोड बनाना सीखे, मशीन का लॉजिक कहते हैं इसको, और फिर ट्रांजिशंस बनाएं, और ट्रांजिशन बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशन करके देखें, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि आया कि मशीन जो हमने बनाई है वो सही है नहीं। तो ये 3 स्टेप होंगे जिससे आप मशीन को सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप जब छोटी छोटी मशीनें बना लेंगे, देन इन छोटी छोटी मशीनों को कंबाइन करके एक बड़ी मशीन बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइनिंग मशीन्स। मिसाल के तौर पे आपने FA बनाया था, PDA बनाया था, दोनों को कंबाइन करके आप एंड करके एक अनदर मशीन बना सकते हैं। तो PDA और FA कैन बी रन इन पैरेलल टू क्रिएट अ न्यू PDA। क्योंकि जैसे हमने याद होगा आपको कि कल मैंने ये असाइनमेंट में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंटरसेक्शन विद द रेगुलर लैंग्वेज रिजल्ट इन टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो PDA को अगर हम FA के साथ, NFA या DFA के साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा PDA ही होगा। तो कंबाइनिंग ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर
आप क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाए, इनपुट दें, ट्यूरिंग मशीन के अंदर लॉजिक बनाएं और आउटपुट पे आपका फंक्शन रखें। तो आप पहले डिसाइड कर लें जो कॉमन आप मैथमेटिक्स की फॉर्म में इनपुट और आउटपुट होता है। अब प्रोसेसिंग के स्टेप्स को आप ट्रांसफॉर्म कर दें या कन्वर्ट कर दें ट्यूरिंग मशीन के अंदर, तो आपकी जो मशीन है वो उस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स को प्रोसेस करने के काबिल बन जाएगी। जैसे अगर हम पीछे वाली दोनों मशीनों को कंबाइन करें तो यहाँ देखें हमने एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई हमने एक्स प्लस वाई करना है, और अगर एक्स लेस देन वाई है तो हमने सिंपल जीरो राइट करना है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे हम सिर्फ वन राइट करवा रहे थे, यहाँ पे प्लस कर दिया। एक और मशीन बन गई जिसमें हम कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एक्स प्लस वाई कर दे, एक्स देन लेस देन वाई है तो जीरो राइट करवा दे। अब यहाँ पे हम जीरो राइट करवाने के बजाय एक और मशीन बना सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि x माइनस वाई बना दें। ठीक है, आप कोई और काम करवा सकते हैं, जो भी आप करवाना चाहें। इस तरह से आप मल्टीपल मशीन्स को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने इनपुट दिया x और y और ये कंपेयर है। कंपेयर क्या कर रहा है, देख रहा है कि x ग्रेटर देन y है या x लेस देन y है। x ग्रेटर देन y है तो एडर चल जाएगा आपका, वही इनपुट जाएगा x और y, और एडर क्या करेगा x प्लस वाई आउटपुट पे दे देगा। और अगर आपका लेस देन होगा तो इरेजर चल जाएगा, वो क्या करेगा जो आपका इनपुट था उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखें आपका आउटपुट कंबाइन हो रहा है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा मशीन्स को कंबाइन करके येट अनदर मशीन बना सकते हैं, बड़ी मशीन। तो पहले आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीख दें, जब छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे तो फिर फाइनली आप बड़ी मशीनें बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन तो आप सर ये एक एक क्वेश्चन है, इफ एल्स वाली दोबारा बताइएगा कि हम इफ एल्स कैसे बनाया था हमने इसमें ट्यूरिंग मशीन में। इफ एल्स जो ए एन बी एन की मशीन बनाई थी ना, जैसे हमने कहा था ए ज्यादा है या बी, यस सर। कंपेयर करते हैं हम वन बाय वन कंपेयर करते हैं। नहीं, ट्यूरिंग मशीन में कैसे हम वो काम कर रहा होगा। ट्यूरिंग मशीन में वही हम करते हैं कि पहले एक्स चेक करते हैं फिर जाके वाई चेक करते हैं। एक एक्स है तो एक वाई होना चाहिए, एक एक्स है तो दूसरा वाई होना चाहिए, इस तरह करते हैं। ए एन की बी एन की मशीन में नहीं देखा था हमने, क्या कर रहे थे हम कि हम लेफ्ट पे आएंगे, पहले चेक करेंगे एक्स है, फिर राइट पे जाएंगे, फिर देखेंगे वाई है, फिर लेफ्ट पे आएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर राइट पे आएंगे, इस तरह से करके। प्रोसेस लंबा है लेकिन लॉजिक वही है, सिंपल। सर वही वही मैं कह सकता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा है प्रोसेस। एक्चुअली कंप्यूटर जो यही कर रहा होता है बैक एंड पे, ये तो हमारे लिए हमें लगता है ना एक सेकंड में करके आ गया प्रोसेस, लेकिन बैक एंड पे कंप्यूटर यही काम कर रहा होता है। सही है सर। तो ये हम फाउंडेशन देख रहे हैं कि कंप्यूटर बैक एंड पे काम कैसे करता है। ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट यही है कि बैक एंड पे कंप्यूटर आपकी कंप्यूटेशन कर रहा है, उसकी लॉजिक क्या है। हमें बैक एंड का समझ में आ जाएगा तो हम फिर कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल कहलाएंगे, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर यूजर नहीं है, हम सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है। बात समझ में आ रही है। तो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर को ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर बैकएंड पे कैसे काम करता है, ताकि वो इस तरह से एफिशिएंट कोडिंग कर सके, एफिशिएंटली इंस्ट्रक्शन लिख के, ताकि कंप्यूटर मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करे। तभी जाके हम इसको फाउंडेशन को इतना डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता हो कितना एब्स्ट्रैक्ट है। एक्चुअली ये कोर्स क्लास 1 में ही मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप इसको मजे से समझेंगे ना फिर मज़ेदार हो जाएगा कि आप ये जान सकेंगे कि एक कॉमन कंप्यूटर यूजर और एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट में क्या फर्क होना चाहिए। यानी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो C++ प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा बैक एंड पे पार्सर कैसे चल रहा है। बस उनको ये आता है कि सी आउट लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, सी इन लिखेंगे तो इनपुट लेगा। ठीक है, वो सी इन और सी आउट के अंदर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो लॉजिक बैक एंड पे कैसे हो रही है, वो सी एस कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को पता होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले को भी नहीं पता होता। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को इस ऑटोमेटा ऑप्शनल है, बल्कि है ही नहीं कोई। लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है। सीएस वालों के लिए तो बाकी क्लासेस क्या बना, बाकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नोटिस कर दिया, निकाल दिया है कि बाकी अपनी रिज्यूम करें क्लासेस। अब टीचर्स अपने लेक्चर प्रिपेयर करके रिज्यूम कर देंगे। ये क्लियर हो गया है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ठीक हो गया जी। सर आपने असाइनमेंट की कहा